Hello everyone, myself Anupam Junjunwala and I am a chartered accountant by qualification, and today I shall be giving you the training of the topic GST, which stands for Goods and Services Tax. Since it is just an introductory class or an introductory video, so I shall be teaching you the overall introduction to the topic, a little history of how did the topic emerge, how did the GST emerge in India, what was the reason that why was GST implemented in India, what was the drawbacks of the earlier taxation system that GST was brought into the India, and what are the good effects and which have been brought up into India because of GST, and because of which the we can conclude that GST is a kind of taxation where we can say that India is one country, one nation, and one taxation. Since I'm recording this video, I am I'm into the conclusion that audience are comfortable enough in pure English as introduction, but if given an opportunity to adjust, so I'm equally comfortable in both the languages, be it क्या तो half Hindi, half English या फिर जैसा भी हो. So I shall be taking my introduction towards a combination of the training that it shall be an English and Hindi combined. So coming to the point discussion that what GST is and how has it benefited the whole of the country in the indirect taxation system. As a mark of introduction, I would like to say that GST is an indirect tax. Indirect tax means the burden of which can be passed upon to the ultimate consumer. It is not like income tax जहाँ पे आपकी जो tax का burden है, it is borne by the person on whom the tax is being applied. Now coming to what GST is and why is it implemented. 1st of July 2017 को GST implement किया गया था, एंड उस पॉइंट से पहले हम लोग इंडिया में बेसिकली दो बड़ा टैक्सेशन थे. सर्विस टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करती थी, और वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स अप्लाई करती थी. 28 स्टेट्स अपने अपने 28 वैट एक्ट वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई करती थी गुड्स के ऊपर, और पूरा 28 स्टेट्स मतलब 28 जुरिस्डिक्शन में हम लोग का गुड्स का टैक्सेशन बढ़ा हुआ था. सो वी मूव टुवर्ड्स पीपीटी. हम लोग पीपीटी को भी अपने डिस्कशन में साथ लेके चलेंगे और विल ट्राई टू डिस्कस दैट हाउ थिंग्स गो ऑन. सो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि as the GST is the goods and services tax, so it is a combination of goods and services tax system. एक ऐसा टैक्स सिस्टम जिसमें कि एक ही टैक्स रिजीम में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इक्वली टैक्स हो रही है. एक ही टैक्स रिजीम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अपना अपना टैक्स इंप्लीमेंट कर रही है. एक ही टैक्स रिजीम में वो लोग रेवेन्यू शेयरिंग कर रही है, एंड द अल्टीमेट टैक्स पेयर is not being puzzled up into paying taxes to different departments, different jurisdiction, be it central government or the state government. So coming to our PPT, what is GST? India's landmark tax reform. So it is implemented on 1st of July 17. The goods and services tax unified multiple indirect taxes, including excise duty, VAT, and service tax into a single streamlined destination-based taxation system. This revolutionary reform introduced a dual GST structure comprising of CGST, SGST, and IGST for interstate transactions, fundamentally transforming how India taxes goods and services. इसका मतलब ये हुआ कि 1st of July से पहले क्या होता, बहुत सारे मल्टीपल टैक्सेस थे इंडिया में. गुड्स के लिए वैल्यू एडेड टैक्स थे, सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स था. इंटर स्टेट जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें सीएसटी लगता था. जब हम लोग एक सीरियस क्लास में आएंगे तो हम लोग टॉपिक्स को डिप डाउन पढ़ेंगे. और तो और परचेज टैक्स अप्लाई होता था, लग्जरी टैक्स अप्लाई होता था, ऑक्ट्राइड ड्यूटी वाज अप्लाइड, एंटरटेनमेंट टैक्स वाज अप्लाइड. सो इतने सारे टैक्सेस थे जो कि अलग अलग अथॉरिटीज अप्लाई कर रही थी. So GST had come and merged all the forms of indirect taxes. Almost 17 types of indirect taxes were merged into one single taxation structure. इसको कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पीपीटी में लिखा यूनिफाइड मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि एक्साइज ड्यूटी को, वैट को, सर्विस टैक्स को सबको अपने भीतर मर्ज कर लिया. एक्साइज ड्यूटी वो होती थी जो कि मैन्युफैक्चर पे अप्लाई, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पे अप्लाई होती थी. सर्विस टैक्स जो कि सर्विस प्रोवाइड करने पे अप्लाई होती थी. वैट जो कि गुड्स पे अप्लाई होती थी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने घर में एक एयर कंडीशनर ऑर्डर करते हो तो एयर कंडीशनर कंपनी के लोग आते हैं, वो आपके घर में इंस्टॉलेशन भी कर दे रहे हैं और अल्टीमेटली वो 35,000 चार्ज कर रहे हैं. तो इस पैकेज में यू आर बाइंग बोथ द थिंग्स, यू आर बाइंग द इंस्टॉलेशन सर्विस एंड यू हैव बॉट द गुड्स, द एयर कंडीशनर एज वेल. बट व्हेन पहले के स्ट्रक्चर में व्हेन द बिल यूज्ड टू बी मेड, सो इंस्टॉलेशन सर्विस को सर्विस लगा के सर्विस टैक्स एक अलग से चार्ज किया जाता था, और उसका गुड एलिमेंट पे एक अलग से वैट अप्लाई किया जाता था, और दो डिफरेंट गवर्नमेंट्स को रिटर्न फाइल करके किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करना पड़ता था.
अब क्या है, अब देयर इज वन सिस्टम फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड, सिर्फ एक टैक्सेशन एंड सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर पीपीटी which is the cascading effect before GST. इसको देखो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स में जाएंगे तो बहुत बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. बट एज ए मार्क ऑफ एग्जांपल आप समझ लो कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज के मैन्युफैक्चरर हो, सपोज आप शूज मैन्युफैक्चरर हो और आप शूज को मैन्युफैक्चर करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको उसमें एक्साइज ड्यूटी देना पड़ गया. फिर आपने जो परचेजेस किए उसमें आपको वैट देना पड़ गया, एंड देन यू आर पेइंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर उसमें अपना कुछ मार्जिन ऐड करके ही सेलिंग टू द फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूटर. सो व्हाट इज हैपनिंग, जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे की है, वो एक्साइज ड्यूटी वो कॉस्ट की इफेक्ट एलिमेंट बन जाती. दैट वाज नॉट द कि वो एक्साइज ड्यूटी वुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनपुट परचेज बाय द रजिस्टर्ड पर्सन. तो इस कारण से एक डबल टैक्सेशन सिस्टम हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट. देखो क्या लिखा है, बिफोर जीएसटी इंडिया's tax system suffered from a fundamental flaw, the cascading effect where taxes were levied on the top of other taxes throughout the supply chain, artificially inflating cost at every stage. हर एक स्टेज पे टैक्स लेवी किया जाते थे जो कि सप्लाई चेन का पार्ट बन जाता था, and artificially inflating the cost at every stage. Raw materials purchase, manufacturer pays excise duty and VAT on inputs. Production stage, additional excise duty levied on the finished goods including previous taxes. Distribution stage, VAT applied again on the cumulative value creating tax on tax. And the final consumer bore the burden of the compounded taxation inflating retail prices. ये चारों चीजें जब होती थी मैन्युफैक्चरर स्टेज से लेके आपका फाइनल कंज्यूमर स्टेज पे, कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन का एलिमेंट रहता था. इनफैक्ट कुछ एलिमेंट पे, कुछ लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे तो ज्यादा ही रहता था क्या, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी पे भी हम लोग को टैक्स पे करना पड़ जाता था. सो दैट इज कॉल्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट. नाउ अब जीएसटी जब आ चुकी है तो मैन्युफैक्चरर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक दे हैव टू पे द ओनली वन टैक्स, दैट इज जीएसटी, एंड द टैक्स पेड एट द प्रीवियस स्टेज इज बीइंग टेकन एज अ सेट ऑफ और द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि हम लोग अपने सीरियस चैप्टर्स में समझेंगे. मूविंग फॉरवर्ड, see, I shall be telling to the viewer or the jury who is watching this introductory class that since it's an introductory class, so we are not going to the deep down of every concept. We are just making, I'm just trying to show my explanation and skills and my presentation skills. So coming to the point, key benefits of GST for Indian businesses. तो ये चार की बेनिफिट्स हम लोग डिस्कस करते हैं. सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म टैक्स रेट्स अक्रॉस मेनी स्लैब्स. These are 5, 12, 18, 28, replacing complex multi-layered taxation system, making compliance straightforward and predictable for business of all sectors. अभी क्या है, आपको हर एक सामान पे, गुड्स लो या सर्विसेज लो, यू हैव टू पे द जीएसटी एंड यू हैव टू फॉलो द जीएसटी रेजिम. तो वो चार टैक्स स्ट्रक्चर है, वो आपको पता है कि ये चारों में ही मेरा गुड्स आएगा या सर्विसेज आएगी, और आपको अलग से गुड्स का रेट नहीं निकालना है, अलग से सर्विसेज का रेट नहीं निकालना है. किसी और स्टेट में गए तो उस स्टेट का वैट पड़ गया, वहां का गुड्स का रेट नहीं निकालना है. इंटर स्टेट सेल हो रहा है तो वहां पे आपको माथापच्ची नहीं करना है कि सीएसटी 2% लगेगा. तो ओवरऑल एक टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना है जिसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर. सेकंड कम्स enhanced business ease. It means increased transparency in compliance process, reduced bureaucratic hurdles and seamless इंटरस्टेट ट्रेड हैव सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड. मतलब चूंकि सिर्फ एक जो आपके मैकेनिज्म है, एक डिपार्टमेंट है, तो जाहिर सी बात है जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जो कि आपको 10-10 डिपार्टमेंट्स पे पेपरबाजी करने पड़ते थे, आपको रिटर्न फाइल करने पड़ते थे, आपको परचेज के डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ते थे, आपको सेल्स मेंटेन करने पड़ते थे, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा. यू आर जस्ट लायबल एंड आंसरेबल टू वन डिपार्टमेंट, दैट इज आवर जीएसटी डिपार्टमेंट. थर्ड कम्स द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे हो रहा है कि चूंकि आपको आईटीसी मिल जा रहा है तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जा रहा है एंड यू आर गेटिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एंड इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन, मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमिक एरेना जो है वो फॉर्मलाइज हो जा रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द जीएसटीज मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म अलाउइंग businesses to claim credit for GST paid on purchases against GST collection on sales. This ensures that the tax is paid only on value addition. हम लोग इलस्ट्रेशन में देखेंगे कि जब कोई रजिस्टर्ड बायर है, सपोज आप एक डीलर हो, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर हो, तो आपने जो अपने पुराने लेवल स्टेज पे जो भी टैक्स पे किया है, अपने आपके डिस्ट्रीब्यूटर को या अपने डीलर को या कंपनी पे को जो भी परचेजेस अपनी की है, उस परचेजेस पे जो आपने टैक्स पे किया है, तो जो फाइनल आउटपुट टैक्स आप अपने कंज्यूमर से कलेक्ट करोगे, वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी
इनपुट टैक्स लाइबिलिटी से सेट ऑफ हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी। दैट इज वाई, तो जो टैक्स आपने पिछले स्टेज पे पे कर रखा है आपको फुल सेट ऑफ उसका मिल जाएगा, एंड यू जस्ट लायबल टू पे जीएसटी ऑन द प्रॉफिट पोर्शन। सो वो जो क्रेडिट आपको मिल जाएगा ऑफ द टैक्स पेड एट द अर्लीस्ट स्टेज, दैट क्रेडिट इज कॉल्ड द इनपुट टैक्स रेट। मतलब आपको अपने इनपुट परचेज करने पे द इनपुट टैक्स पेड ऑन द input purchases by any registered person is called as input tax credit, and that is being allowed as a set off in terms of while making the output tax liability. And then comes conditions to claim ITC in India. तो अब ये 5-6 conditions है. When we shall go to the deep down into the chapter, we shall learn कि हाँ कि क्या क्या condition है कि registered party होनी चाहिए, payment timeline होना चाहिए. सो हम लोग एक अगले स्लाइड पे मूव करते हैं, विच इज हाउ आईटीसी वर्क्स इन इंडियन बिजनेस कंटेक्स्ट। हाँ, ये यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि लेवल 1 में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, टोटल 1,18,000 पे किया गया, जिसमें कि 18,000 आपका जीएसटी है। सेल ऑफ फिनिश गुड्स हुआ 1.5 लाख रुपए में प्लस 18% जीएसटी, मतलब 1,77,000, तो जीएसटी कलेक्शन आपका हुआ 27,000। तो अब इसमें क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वैल्यू एडिशन थ्रू द प्रोडक्शन 50,000 का वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आईटीसी क्लेम क्या हो जाएगा, आईटीसी क्लेम 18,000। ये जो 18,000 आपका स्टार्टिंग में पे किया गया इनपुट, वो आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 27,000 से सेट ऑफ होकर आपको सिर्फ नेट 9,000 पेमेंट करना है। इस मैकेनिज्म को हम लोग आईटीसी बोलते हैं, आईटीसी क्लेम बोलते हैं। विल सी बाय डिफरेंट इलस्ट्रेशंस इन आवर मैनुअल पेन टैब, जहाँ पे हम टाइप राइट मैनुअली लिख के चीजों को इलस्ट्रेशन वाइज हम लोगों को सॉल्व करना होगा। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, बेनिफिट्स ऑफ आईटीसी। जाहिर सी बात है, अगर आपको आईटीसी मिल रहा है तो चीज़ों की दाम कम होगी, आपको डबल टैक्सेशन पे नहीं करना पड़ेगा, क्लैरिटी होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा, यही सब चीज़ें। रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, इट सिग्निफिकेंटली लोअर्स ओवरऑल टैक्स बर्डन बाय अलाउइंग क्रेडिट फॉर टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स, प्रिवेंटिंग डबल टैक्सेशन थ्रू आउट द सप्लाई चेन। Second is improves cash flow, reduces upfront tax outflow by claiming credits against output tax, freeing up the working capital। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको टैक्स ऑन टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा है तो आपका कैश फ्लो तो इंक्रीज होगा ना, आपका तो कैपिटल ब्लॉकेज कम होगा। टैक्स पहला हो गया टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस करना, कि इफ यू आर गेटिंग द सेट ऑफ ऑन द इनपुट पेड एंड उसमें एक्साइज ड्यूटी भी इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है आपका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा। दो आप उसको पास ऑन कर दोगे अल्टीमेट कंज्यूमर को, बट फिर भी आपके एंड पे तो टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होगा ही होगा। ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पोर्शन, important restrictions and compliance tips. Let us skip this. हाँ, अब ये जो लास्ट स्लाइड है इसको डिस्कस करते हुए वी वुड लाइक टू कंक्लूड द इंट्रोडक्शन क्लास कि क्या हो रहा है। ठीक है, जीएसटी ड्राइविंग इंडिया से एफिशिएंसी एंड बिजनेस ग्रोथ, कैसे जो है इंडिया का ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। एक बात मैं आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि इंडिया इज अ कंट्री हु हैज टेकन a very late step in implementation of GST in the whole of the country. Other than India, we have seen many Western countries who had adopted GST at least 20 to 30 years beforehand itself than India. Secondly, whenever India adopts any law or adopts any act by taking inspiration from other countries, तो उसमें इंडिया अपने खुद का कस्टमाइजेशन करता है ताकि वो इंडियन सिस्टम फेडरल स्ट्रक्चर में बेस्ट टेलर मेड सूट कर सके। तो ओवरऑल देखो जीएसटी का बेनिफिट्स यहाँ पे इंडिया में क्या देगा, स्ट्रीमलाइन टैक्सेशन, जीएसटी विद आईटीसी क्रिएट्स एन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्सेशन। स्ट्रीमलाइन डबल टैक्सेशन आपका जो इफेक्ट है एलिमिनेट हो गया, तो जो टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रीमलाइन है, कॉमन चैनल में फ्लो कर रहा है और एक बहुत ही बूस्टेड प्रोसेस फ्लो कर रहा है। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड लेवरेजिंग आईटीसी मैक्सिमाइजेस टैक्स सेविंग्स एंड इंप्रूव्स कैश फ्लो मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, आपका टैक्स ऑप्टिमाइज हो रहा है और आपको 10 जगह यू आर नॉट सपोज टू फाइल टैक्स रिटर्न्स एट डिफरेंट प्लेसेस, यू आर नॉट सपोज टू पे टैक्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड thus your taxation system is getting optimized. Third is competitive advantage. Use ITC strategically to enhance business competitiveness and profitability in the market. अगर आपको पता है कि आप रजिस्टर्ड लोगों से ही, रजिस्टर्ड पर्सन से ही अगर आप परचेज कर रहे हो और आपके कॉम्पिटिटर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको आईटीसी मिलने वाला है, और आईटीसी चूंकि आप क्लेम कर लोगे तो दैट विल लीड टू अ रिडक्शन इन योर कॉस्टिंग एंड thus you shall be getting the competitive advantage. And stay compliant. Maintain
meticulous records, file return timely and reconcile regularly for seamless benefits। जाहिर सी बात है, आपको एक कॉमन डिपार्टमेंट ही है जहाँ पे रिटर्न फाइल करना है, जहाँ पे आपको सारे के सारे परचेज एंड सेल्स के डिटेल्स देने हैं, तो आप कंप्लाइंट रहोगे कि यार बिकॉज थिंग्स आर नॉट मेस्ड अप। So hence we can say that seeing all these benefits of GST is a kind of taxation system which has converted India into one country, one nation and one tax, जहाँ पे सारे के सारे states and union territories have been imbibed into the thread of one indirect taxation system which is called goods and services tax, जहाँ पे full transparency है and all the states जहाँ पे आप इंटर स्टेट परचेज भी करते हो, चाहे अपने खुद के स्टेट से करो, चाहे आप दिल्ली से करो या कहीं और से करो, आपको आईटीसी मिल जाएगा एंड यू शैल बी एट ए नो पोजिशन ऑफ डिसएडवांटेज अर्लियर विच यूज्ड टू हैपन इन द वैट सिस्टम। So that's all for today. When we'll go to the serious classes, we have a lot of discussions over GST की सप्लाई किसको बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई किसको बोलते हैं, आईटीसी के कंडीशंस क्या होते हैं, रिटर्न्स क्या होते हैं, पेनल्टीज क्या होते हैं, एंड व्हाट अ ब्लॉट क्रेडिट, व्हाट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, हम लोग सब चीज़ डिटेल में समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।